Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my presentation. This is Sobia Ali, student of MPhil first semester, Department of Microbiology. The topic of my presentation is bioremediation of wastewater by iron oxide biochar, nanocomposites loaded with photosynthetic bacteria. So basically, this presentation has been prepared from an original research paper which was published in 2017, and the name of the journal is Frontiers in Microbiology. As you can see the front page of the research paper. So these are the outlines of my presentation. Introduction, material and methods, result and discussion, conclusion, and the last one, references. Introduction. Water pollution remains as an enduring environmental problem that accompanies with worldwide human population increase and economic development. The organic pollutants, excessive phosphorus and nitrogen, released through runoff frequently result in the eutrophication of water bodies, which is harmful to the health of human beings and to the ecological environment. It is desirable to establish environmentally benign and economically cost-effective measures to keep such pollutions under control. Significant efforts have already been made to improve wastewater treatment with different approaches such as adsorption, coagulation, photocatalytic oxidation, and biodegradation. But unfortunately, effectiveness in actual applications are frequently hampered by various factors such as energy, efficiency, stability, and economy. The combination of biodegradation and nanotechnology is suggested as a potential efficient, low-cost, and environmental benign technique. Human has long history of biological wastewater treatment by microorganisms. This worldwide approach has been proven as an effective and environmental friendly strategy. तो यहाँ तक तो बात हो गई बायोडिग्रेडेशन की कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है बायोडिग्रेडेशन के ज़रिए होती रही है और बायोडिग्रेडेशन मीन्स कि उसमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स का जो था इस्तेमाल हुआ था, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता था। और उसका जो है वो बाकी तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो इकोनॉमिकली जो है वो सही है, मतलब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, सॉरी, बट वो था स्लो प्रोसेस का। तो ये साइंटिस्ट शुरू से ये करते आ रहे हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस में। लेकिन इस रिसर्च पेपर के मुताबिक दो चीज़ों को मर्ज किया गया है, यानी बायोडिग्रेडेशन को और नैनो टेक्नोलॉजी को, और ये सजेस्ट किया गया है कि ये दोनों चीज़ें जब आपस में एक साथ एक एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड करेंगे तो ये एक अच्छा और एफिशिएंट रिजल्ट देंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थी वो तो लो प्रोसेसेस थी बहुत, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो बैक्टीरिया यूज़ हुए हैं एक्सपेरिमेंट्स में such as Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger and Rhodostodomonas spheroides in wastewater treatment, तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया है। Then it is well known by now that they can degrade toxic pollutants in aqueous media during their metabolism. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी बैक्टीरिया, वो जब ग्रोथ करते हैं किसी एक्वस मीडिया में, तो अपनी ग्रोथ के लिए वो उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती हैं, और न्यूट्रिएंट्स के लिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है या वेस्ट मटेरियल या जो भी होता है, तो उसमें जो वेस्ट पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको डिग्रेड करके खुद ग्रोथ कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था और मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स में ये यूज़ भी हुआ है, लेकिन जो उसका जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, यानी कि अगर एक्सपेरिमेंट अगर वो उससे करते थे तो बहुत ज़्यादा वो टाइम लेता था। तो इस रिसर्च पेपर में जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को यूज़ किया गया है, क्योंकि वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो कर सकता है काम। तो photosynthetic bacteria can simultaneously remove carbon, nitrogen, and phosphorus in synthetic sewage and soybean wastewater treatment. And
As I said, that one of the main limitation of biological wastewater treatment are that biodegradation processes are usually very slow. तो बायोडिग्रेडेशन के बाद बारी आती है नैनो टेक्नोलॉजी की, और नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स बनाए गए थे। और जो आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स हैं उनकी एक नई प्रॉपर्टी ये थी कि वो एड्जॉर्प्शन यानी स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन करते थे, स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी थी उसकी, केमिकल इनर्टनेस कर सकते थे। और दूसरी बात ये कि बायो कंपेटिबिलिटी मीन्स के वो लिविंग सेल्स के साथ भी वो कंबाइन हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है उसको सुपर मैग्नेटिज्म भी थी। Prevent aggregation from happening, one approach is to load nitrogen nanoparticles on carriers. तो जो नैनो पार्टिकल्स थे उसको प्रीवियसली एक्सपेरिमेंट्स में चेक किया गया है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल था। वो इस वजह से कि आयरन ऑक्साइड्स को जब नैनो पार्टिकल्स को जब लोड करते थे किसी एक्सपेरिमेंट में तो वो एग्रीगेट कर जाते थे, और एग्रीगेट करने के बाद उसका सरफेस एरिया कम हो जाता था, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट को सही से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो इस पर्पस के लिए एक नया कॉन्सेप्ट सोचा गया कि उसको किसी एक कैरियर पर वो लोड कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया जो हो ज़्यादा हो। तो इस रिसर्च पेपर के मुताबिक बायोचार को बनाया गया, और बायोचार जो है उसको कैसे क्रिएट किया गया कि बायोमास मटेरियल्स यानी जो फॉरेस्ट्री रेजिड्यूज होते हैं या एग्रीकल्चर जो भी एक नेचुरल चीज़ हैं, इन नेचुरल चीज़ों को जो है पायरोलिसिस प्रोसेस के जरिए ब्रेक डाउन किया गया और बायोचार बना लिया गया। बायोचार जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव रहा थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, उसकी पोरेसिटी ज़्यादा थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो अबंडेंट फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच हो सकते थे, यानी कि सिर्फ आयरन के लिए नहीं था, उसके साथ बाकी भी बहुत सारी चीज़ें अटैच हो सकती थी, जो कि बहुत बड़ी मतलब एक इम्पॉर्टेंट उसमें कॉन्सेप्ट है। Its wide application can also benefits from low cost, being eco-friendly, and the most importantly is abundant availability. Biochar is an effective adsorbent and waste removal. Naturally, biochar is chosen as the most ideal carrier for iron oxides nanoparticles. To find the features of photosynthetic bacteria, nanoparticles, biochars, composites is another goal to develop a real effective technique in wastewater treatment. So these composites can utilize advantages from individual component of a combination of iron oxides, nanoparticles, which is used for adsorption, catalysis, and magnetic separation. And the second one is photosynthetic bacteria, which is used for biodegradation. And the third one is biochar, which was used for absorption purposes. So the main goal of this work was to remove the following nutrients from the wastewater, and that is COD, ammonia, and phosphate. Material and method. So इस रिसर्च पेपर में जो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट के लिए कोई एक स्टेप था, सबसे पहला स्टेप ये था कि बैक्टीरिया स्ट्रेन को लिया गया था, और वो बैक्टीरिया थी रोडोबैक्टर कैप्सुलेटस, विच इज़ पर्पल नॉन साइटोबैक्टीरियम। और उसके बाद सिंथेसिस की गई आयरन ऑक्साइड एंड बायोचार की। तो आयरन ऑक्साइड एंड बायोचार की सिंथेसिस कैसे की गई थी? बायोचार जो था वो व्हीट स्ट्रॉ से बनाया गया था एंड पायरोलिसिस के ज़रिए, और टेम्परेचर था 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जब ये कंपोजिट बन गया, कंपोजिट बनने के बाद ये बैक्टीरिया स्ट्रेन हमने लिया हुआ है इस रिसर्च पेपर में जो लिया हुआ है, वो रोडोबैक्टर कैप्सुलेटस बैक्टीरिया जो है वो इस बायोचार के ऊपर यानी इस कंपोजिट के ऊपर लोड किया गया फॉर इमोबिलाइजेशन, यानी कि इस बैक्टीरिया को इमोबिलाइज करने के लिए इसके ऊपर लोड कर दिया गया था। The photosynthetic bacteria Rhodobacter capsulatus was cultivated in medium for 72 hours at 30 degrees centigrade. Cells were harvested at the mid-log phase of the growth curve. तो जब इस बैक्टीरिया को ग्रोथ किया गया for 72 hours और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर,
तो ये सेल्स जो थे सेल्स लो फेज में, यानी जिस फेज पे ज़्यादा उसकी ग्रोथ थी उस फेज पे उसको हार्वेस्ट किया गया है, यानी लिया गया है। मटेरियल एंड मेथड्स, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस मेंशन है कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ है, यानी इस पेपर में। तो सबसे पहले बायोमास लिया है, यानी जो फॉरेस्ट्री रेजिड्यूज थे और एग्रीकल्चर रेजिड्यू। एज आई प्रीवियसली सेड दैट वीट स्ट्रॉ लिए हैं, तो वीट स्ट्रॉ को लेने के बाद पायरोलिसिस की गई, उसकी ब्रेकडाउनिंग की गई, और उसके बाद बायोचार बनाया गया। बायोचार क्या है कि उसकी क्वालिटी यानी प्रॉपर्टी उसकी ये है कि वो पोरस है और पॉलीफंक्शनल है। यानी पोरस मीन्स के उसमें बहुत ज़्यादा पोर्स हैं और वो हर एक चीज़ के साथ इजीली अटैच हो सकता है, उसमें हर एक चीज़ इजीली सेटल हो सकती हैं। उसके बाद बायोचार के साथ कम्बिनेशन की गई फेरिक +2 और फेरिक +3 एंड अमोनिया हाइड्रोक्साइड, और उसकी को प्रेसिपिटेशन की गई, जिसकी वजह से नैनो पार्टिकल्स बन गए उसके, यानी आयरन ऑक्साइड्स के पार्टिकल्स बन गए, नैनो पार्टिकल्स। इन दोनों चीज़ों को जो है आपस में असेंबल किया गया, यानी सेल्फ असेंबलीज भी हो गई। और उसके बाद नैनो पार्टिकल्स जो थे फेरिक ऑक्साइड के यानी आयरन ऑक्साइड्स के, और बाईचार कंपोजिट, बाईचार उसका एक कंपोजिट बन गया, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रोडोबैक्टर कैप्सुलेटस उसको लोड किया गया। आफ्टर इंक्यूबेशन ये जो थी एक मुकम्मल फाइनल प्रोडक्ट बन गई, यानी आयरन ऑक्साइड्स, बायोचार एंड इमोबिलाइज्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। Material and methods. The products were characterized by scanning electron microscopy, transmission electron microscopy. The crystal structure were determined using X-ray diffraction XRD, and the BET surface area of the samples were determined by using a computer controlled nitrogen as adsorption analyzer. FTIR spectra of the material were recorded with पोटाशियम ब्रोमाइड डिस्क। तो इन चीज़ों को करेक्टराइज करने के लिए, यानी जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें इन तीनों चीज़ों को करेक्टराइज करने के लिए हमने डिफरेंट उसमें टेक्निक्स यूज़ हुए हैं, यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की गई उसकी कि आया जो ये चीज़ कंबाइन की है तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है या नहीं। तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, उसकी कम्बिनेशन, वो चेक करने के लिए ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हुए हैं। उसके बाद ये ग्राफ है, इस ग्राफ के ज़रिए ये जो था कंक्लूड किया गया कि हाँ ये सक्सेसफुली डन हो गया। यहाँ पे कुछ माइक्रोस्कोपी की इमेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इमेज ए जो है इसमें नैनो पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। नैनो पार्टिकल्स, अब देखिए यहाँ पे एग्रीगेशन उसकी हुई है, वो कम्पैक्ट फॉर्म में है तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, उस वजह से वो प्योरिफिकेशन या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वो नहीं कर पाता। सेकेंड वन इज बायोचार, तो बायोचार बनाया गया, उसकी यहाँ पे माइक्रोस्कोपी की गई। एंड द थर्ड वन इज के बायोचार के ऊपर जब माइक्रो जो नैनो पार्टिकल्स थे आयरन ऑक्साइड के वो लोड किए गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो डिफरेंट जगह पे अटैच हुए हैं, यानी उसका जो सरफेस एरिया था पहले कम्पैक्ट फॉर्म में थे, अब बिल्कुल यूनिफॉर्मली यानी स्प्रेड हो चुके हैं उस पर। और इमेज डी जो है यहाँ पे उसकी पोरेसिटी दिखाई गई है बायोचार की कि इतना वो पोरस है, मींस के उसके साथ इजीली अटैच हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी उसमें सेटल हो सकते हैं और आयरन ऑक्साइड्स भी। ये एक ग्राफ है जो इस पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव था कि सीओडी को रिमूव करना था, फॉस्फेट को रिमूव करना था और अमोनिया को फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो इस ग्राफ के ज़रिए फिर ये कंक्लूजन हुई कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है वो कंट्रोल लाइन रखी गई, रेड जो था वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए, ग्रीन जो था आयरन ऑक्साइड बायोचार, एंड द ब्लू वन इज फॉर फाइनल प्रोडक्ट जो था, जो तीनों का बिल्कुल मिक्सचर था, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आयरन ऑक्साइड एंड बायोचार। तो यहाँ पे ब्लैक लाइन कंट्रोल एज ए कंट्रोल दिखाया गया है,
और जो रेड वन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एफिशिएंसी इतनी थी, यानी यहाँ जितना यहाँ तक जो था वेस्ट वाटर या मटेरियल कह दें या वेस्ट पोल्यूटेंट जो थे वो यहाँ तक थे, लेकिन जब उस पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को सिर्फ लोड किया गया तो उसकी एफिशिएंसी इतनी थी, यानी इतना कम किया था उसने। उसके बाद बात आती है उसकी आयरन ऑक्साइड एंड बायोचार की। तो आयरन ऑक्साइड बायोचार का जो कंपोजिट बनाया गया उसको जब लोड किया गया तो वो उसकी एफिशिएंसी इतनी थी, यानी कंट्रोल से लेकर यहाँ तक इस रेंज तक उसने कम किया हुआ था वाटर पोल्यूशन को। एंड द लास्ट वन इज जो बिल्कुल मिक्सचर था इन तीनों चीज़ों का, वो जब लोड किया गया तो यहाँ इस ब्लैक लाइन से यानी कंट्रोल से लेकर यहाँ तक उसकी एफिशिएंसी आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल रहा है। और ये जो ग्राफ है इसमें रिमूवल एफिशिएंसी दिखाई गई है, यानी जो सीओडी है और जो अमोनिया है और फॉस्फेट, यानी ये रिमूव 5 साइकिल्स तक कर सकता है। यानी इस एक्सपेरिमेंट को या इस प्रोडक्ट को जो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ था ये, इसको हम 5 साइकिल्स तक रिपीट कर सकते हैं और इसकी एफिशिएंसी 5 साइकिल्स तक ही अच्छी रहती है, उसके बाद वो काम जो है सही से नहीं करता। यह अगेन वही एक्सपेरिमेंट दिखाई गई है कि यहाँ जिस तरह हम सिंथेटिक वेस्ट वाटर ले लेते हैं, उसके बाद कंपोजिट हैं यानी बैक्टीरिया नैनो पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड्स एंड विच वर लोडेड ऑन बायोचार, तो उसको जो है इंक्यूबेट किया गया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन उसकी की गई, यानी उसको रिसाइकल करने के लिए हम मैग्नेट यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब हम उसको रिसाइकल करते हैं तो मैग्नेटिक जो सेपरेशन होती है, यानी मैग्नेट उसके पास रख देते हैं और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके दोबारा हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, यानी इफ़ेक्टिव है ये बहुत। और इसके अलावा इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो अदर न्यूट्रिएंट्स को भी रिमूव कर सकता है। कंक्लूजन, तो इस पेपर में ओवरऑल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बात हुई थी। उनका मेन मकसद यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि उसने सीओडी, फॉस्फेट और अमोनिया को हटाना था। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि आयरन ऑक्साइड्स को बनाना था, आयरन ऑक्साइड्स। तो आयरन ऑक्साइड्स लिए थे और जो बायोचार मतलब मेन मकसद उसका ये था कि उसको बायोचार पे डिस्पर्स करना था, यानी उसकी कैपेसिटी को, एफिशिएंसी को बढ़ाना था। पहले वो कम्पैक्ट फॉर्म में होते थे, एग्रीगेट होते थे, उसके बाद जब बायोचार बनाया गया तो उसकी एग्रीगेशन कम हो गई बायोचार के जरिए से। नेक्स्ट ये था कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जब लिया था तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इम्बलाइज किया इसी बायोचार पर, और जिसकी वजह से फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बन गया था फिर ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आयरन ऑक्साइड, बायोचार कंपोजिट्स। तो ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सलेंट रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सलेंट रही और ये एक आइडियल जो है एजेंट रहा है प्रैक्टिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। Its nutrients, COD, nitrogen and phosphate removal efficiency remain high even after 5 cycles. तो इसको 5 साइकिल्स तक इजीली यूज़ कर सकते हैं और वो बिल्कुल वही एग्जैक्ट आपको रिजल्ट दे सकते हैं। Its magnetic properties enables an easy recovery at the end of the cycle. Besides water treatment, its application may also be expanded to the biodegradation of other hazardous compounds in environment. तो अब यहाँ पे एक किस्म के क्लू हमें मिलती है कि यानी इसके ज़रिए से हम मज़ीद भी रिसर्च कर सकते हैं, इसको मज़ीद प्रोसीड कर सकते हैं, यानी ये तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बहुत यूज़फुल रहा है। इसको अदर इन्वायरमेंट के जो हैज़ार्डस कंपाउंड्स हैं उसमें भी ये यूज़ हो सकते हैं और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। So this is the reference of this paper. Thank you.